વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે પાઠ 3 જોયો હતો, જેની અંદર જે છે એ હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય એવા કેટલાક ચુટકુલે આપેલા હતા। આજે આપણે જે છે પાઠ ચોથો જે છે પુસ્તક હમારી મિત્ર જે છે એ જોશું। આ પાઠ જે છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર જે છે પત્ર સ્વરૂપ છે, એટલે પાઠ જે છે એ પત્ર સ્વરૂપ છે અને પત્ર દ્વારા જે છે એક પુસ્તકનું મહત્વ સમજાવવામાં આવેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ હશે કે પત્ર જે છે એ આજકાલ જે છે તેનું રૂપ જે છે એ મોટા ભાગે જે છે એ મીડિયાએ લઈ લીધું છે। પહેલાં જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારનો પત્ર વ્યવહાર જે છે, જ્યારે પત્ર વ્યવહારની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે જે છે લોકો કેવી રીતે જે છે પોતાનો સંદેશો બીજા લોકો સુધી પહોંચાડતા હતા। તો પહેલાં જે છે એવા પશુઓ અને પક્ષીઓને પાળવામાં આવતા હતા, જેથી કરીને તે સંદેશા વ્યવહાર જે છે આરામથી કરી શકતા હતા। જેમાં ખાસ કરીને કબૂતર પક્ષી જે છે, બાજ પક્ષી છે, ઘોડો છે, કૂતરો છે, આવા જે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ દ્વારા જે છે એમને એવી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી, જેથી કરીને તેઓ જે છે એ સંદેશો જે છે એ બીજા રાજ્ય સુધી પહોંચાડી શકતા હતા। ધીરે ધીરે આધુનિક સ્વરૂપ જેમ જેમ આવતું ગયું તેમ તેમ જે છે સંદેશા વ્યવહારનું કામ જે છે એ દૂત પ્રથા જે છે એ અસ્તિત્વમાં આવી। દૂત પ્રથા એટલે કે કોઈ એક વ્યક્તિ જે હોય છે એ વ્યક્તિ જે છે એ બીજા વ્યક્તિને બીજા લોકોને સંદેશો જે છે એ લઈને જાય છે। એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં તે રાજાનો સંદેશો લઈને જાય છે, તો તે વ્યક્તિ જે છે સંદેશો લઈને જાય તો તેને દૂત પ્રથા કહેવામાં આવે છે। તો એમાં દૂતના પણ ઘણા બધા જે છે નિયમો હતા કે કોઈ પણ પ્રકારનો દૂત જે છે એ ગુનો કરે તો એને મારી શકાતો નહીં। એવી દૂત પ્રથા જે છે એ આપણે અસ્તિત્વમાં આવી। ત્યારબાદ અંગ્રેજોના સમયમાં જે છે એ આપણા દેશની અંદર પત્ર વ્યવહારની શરૂઆત થઈ। એમાં મુખ્ય શહેરોની અંદર જે છે તાર ટપાલ જે છે વ્યવસ્થા શરૂ થઈ હતી। એના દ્વારા જે છે પત્ર સ્વરૂપ જે છે એ આપણા અભ્યાસની અંદર આવ્યું અને આપણે એને ઘણી બધી રીતે જોઈએ છીએ। પરંતુ આજે એ પત્ર વ્યવહાર જે છે એ મોટા ભાગે જે છે એ બંધ થઈ ગયો છે। લોકો જે છે એ SMS છે, વોટ્સઅપ છે, મેસેજર છે, એના દ્વારા પોતાનો સંદેશો જે છે લોકો સુધી પહોંચાડી દે છે। એટલે આજે મોટા ભાગનું જે છે એ કામ જે છે પત્ર વ્યવહાર સ્વરૂપે થતું નથી। પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ મિત્રો આપણે પત્ર વ્યવહાર કરવો બહુ જરૂરી હોય છે, કે જ્યાં આપણે પત્ર વ્યવહારથી જ કામ કરવાનું હોય છે। ખાસ કરીને જે આપણા જે છે ઔપચારિક પત્રો અને અનૌપચારિક પત્રો, એમાં ઔપચારિક પત્રો અને અનૌપચારિક પત્રો પણ ખૂબ મહત્વના છે। જે આપણે કોર્ટ કચેરીની અંદર જે પત્રો રજૂઆત કરીએ છીએ, પત્ર સ્વરૂપે જે કોઈ પણ જે છે કાર્યાલયમાં આપણે પત્ર વ્યવહાર કરીએ છીએ, તો તે કામ આપણે પત્ર દ્વારા જે છે એ કરીએ છીએ। એટલે પત્રનું સ્વરૂપ જાણવું બહુ અગત્યનું છે। તો અહીંયા પાઠ જે છે આપણે પહેલાં પણ પત્રનો પોઈન્ટ લીધો હતો અને એમાં આપણે ઘણા બધા નિયમો પણ જોયા હતા। આ પાઠ જે છે પત્ર સ્વરૂપે છે, એટલે આપણે થોડુંક સમજવાનો પ્રયાસ કરશું કે ભાઈ પત્ર જે છે એ શું છે અને આ પત્ર દ્વારા આપણને પુસ્તકનું મહત્વ સમજાયું છે કે પુસ્તક શું છે અને તેનું મહત્વ શું છે। તો સૌથી પહેલાં જે છે એ આપણે પત્ર જે છે એ શું છે એ समझी લઈએ। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन एवं जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर पत्र को एक कला के रूप में देखा गया है, जो सबको लिखना नहीं आता है। पत्र की भाषा जो है बहुत ही सरल और सुयोग्य होनी चाहिए, ताकि जो है पढ़ने वाला जो होता है उसे तुरंत ही वह बात समझ में आ जाए। इस प्रकार पत्र की शैली जो है, भाषा जो है, उस पर हमारा प्रभुत्व होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर पत्र का एक रूप दिया गया है, जिसके द्वारा हम पुस्तक का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पूजन नाम का जो व्यक्ति है,
पूजन नाम का जो छात्र है वह अपने मनोज नाम के मित्र को जो है पत्र लिखता है। पूजन नाम का मित्र जो है वह अपने मित्र मनोज को पुस्तक का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पत्र कौन लिख रहा है? पूजन लिख रहा है। और पूजन किसको पत्र लिख रहा है? तो मनोज को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो पत्र में जो पता दिया गया है वह किसका है? तो यह पूजन का पता है, क्योंकि पूजन ने यह पत्र लिखा है। तो यहाँ पर जो पता दिया गया है वह पूजन का है। तो पूजन कहाँ पर रहता है? तो 195 उमियानगर सोसाइटी में वह रहता है। और वह उमियानगर सोसाइटी किस जिले में पड़ती है? तो वह मुंद्रा शहर में पड़ती है। उमियानगर सोसाइटी कहाँ पर है? तो कि मुंद्रा शहर में है। और मुंद्रा शहर कहाँ पर आया हुआ है? तो वह कच्छ में आया हुआ है। तो सबसे पहले जो गली मोहल्ला होता है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पूजन जो है 195 उमियानगर सोसाइटी में रहता है और वह मुंद्रा शहर में है। और वह जिला कौन सा है? तो वह कच्छ जिला है। और किस दिनांक को लिखा है? तो 4/8/2011 को यह पत्र लिखा गया है। यहाँ पर संबोधन है। तो यहाँ पूजन जो है अपने मित्र जो है मनोज को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ प्रिय मनोज यानी कि यहाँ उसका मित्र जो है उसका नाम है मनोज, प्रिय मनोज। और वह सबसे पहले अभिवादन करते हुए उसे नमस्कार करता है। सबसे पहले पता लिखना है। पता में सबसे पहले हमें गली और मोहल्ले का नाम लिखना है। उसके बाद जो है शहर का नाम, जिले का नाम और दिनांक लिखनी है। यहाँ पर जो यह प्रिय मनोज लिखा है यह एक संबोधन है और यह जो है एक अभिवादन है। नमस्ते यानी कि सबसे पहले हम पत्र की शुरुआत में हमें किसी को बातचीत करने से पहले उसके अभिवादन करना चाहिए। नमस्कार, नमस्ते ऐसे अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पत्र में हमें पुस्तक का महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले हम पाठ के द्वारा जो है वह समझने का प्रयास करेंगे। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल होगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। उसमें कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इसलिए इसमें मैं सम्मिलित हुआ था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। यहाँ पर मनोज जो है पूजन जो है वह अपने मित्र को पत्र लिखता है। पत्र की शुरुआत में वह कुशलता के समाचार पूछता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल होगे, क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले कुशलता के समाचार पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर पूजन जो है अपने मित्र को कुशलता के समाचार पूछता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल होगे। मैं तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। वांचे गुजरात हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था और वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत हमारी पाठशाला में कई तरह के कार्यक्रम चल रहे थे। उसमें मैंने भाग लिया था, इसलिए मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान मैं तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। उसके अंदर कई प्रवृत्तियां रखी गई थी, उसमें मैंने भाग लिया था, इसलिए मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। तो यहाँ पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, जो 2011 में हमारी जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की गुजरात राज्य में,
उन्होंने पाठशाला के अंतर्गत जो है एक अभियान चलाया था वांचे गुजरात, जिसमें छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़नी थी, क्योंकि गुजरात राज्य जो है पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। इसलिए 2011 में नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आज, उन्होंने जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यह अभियान जो है वह घोषित किया था वांचे गुजरात। और वांचे गुजरात के अंतर्गत जो है इस पाठशाला में कई तरह की प्रवृत्तियां रखी गई थी। उस प्रवृत्तियों में पूजन ने भी भाग लिया था। इसलिए पूजन जो है वह मनोज से कहता है कि मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन कई दिनों से हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, उसके अंतर्गत हमें कई तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, उसमें मैंने भाग लिया था, इसलिए मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। और राज्य सरकार ने एक सूत्र भी घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। राज्य सरकार ने एक सूत्र को घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, यानी कि पुस्तक जो है हमारी सच्ची मित्र है। तो यहाँ पूजन जो है वो अपने मित्र को मनोज को कहता है कि आशा है कि तुमने भी इस वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत भाग लिया होगा, और मैं आज तुम्हें इस पत्र के द्वारा जो है वह पुस्तक का महत्व बताने वाला हूँ। पूजन जो है वह अपने मित्र मनोज को पत्र लिखकर बताता है कि कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, उसमें कई तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, मैंने उसमें भाग लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें पत्र लिखने में थोड़ी देर कर दी। और वे बाद में बताता है कि राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। तो आज मैं इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें पुस्तक का महत्व बताने वाला हूँ। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व बताने किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सबकी मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती हैं, भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो यहाँ जो है पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र में लिखता है कि आज मैं तुम्हें इस पत्र के द्वारा जो है पुस्तक का महत्व बताने वाला हूँ। वे सबसे पहले लिखता है कि पुस्तक हमारी सच्ची मित्र है, किताब हमारी सच्ची मित्र है। और किताब जो है हमें भले बुरे का फर्क बताती है, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, वो भले बुरे का हमें फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जो पुस्तक जो है हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार हमारा हाथ का मैल जो होता है वो साबुन से धुल जाता है, हम यदि हाथ के मैल को दूर करना चाहते हैं तो यदि हम साबुन से हाथ धोए तो हमारे हाथ एकदम स्वच्छ और अच्छे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी बहुत सा मैल जमा हो गया होता है। मन में कई प्रकार के कुविचार जो है वो आते रहते हैं, बुरे विचार आते रहते हैं, किसी का बुरा करने का मन में सोचते रहते हैं। तो ऐसे बुरे विचार जो है हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। तो ऐसे बुरे विचार को कौन दूर कर सकता है? तो पुस्तक दूर कर सकती है। पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार हाथ साबुन से धोने से एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हमारा मन का मैल जो है वो पुस्तकें दूर करती हैं। इसलिए यहाँ पूजन जो है मनोज से आग्रह करता है कि हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तक जो है हमारे अज्ञान को दूर करती है और ज्ञान का प्रकाश देती है, और अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश देती है। हमें अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तक जो है हमें भले बुरे का फर्क बताती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमें भले बुरे का फर्क बताती है। इसलिए हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसा पूजन जो है पत्र के द्वारा जो है अपने मित्र मनोज को बता रहा है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनके जिज्ञासा की पूर्ति होती है।
इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखती हैं, किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। यहाँ पूजन जो है बाद में लिखता है कि पुस्तक जो है हमें ज्ञान का, पुस्तक में ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का स्रोत है, और जिसे पढ़ने से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, वे ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं, और किताबें जो है बड़ी मूल्यवान होती हैं। यदि हम किताबों की बात करें तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि किताब कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति था, वो जीवन में बहुत हताश और निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, और वह जो है आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। स्टेशन पर जाता है, रेलवे के स्टेशन पर जाता है, और वहाँ किसी गाड़ी में कूदकर अपनी जान देना चाहता था। वह आत्महत्या का सोच रहा था, और उसने सोच लिया कि आज मैं अपनी आत्मा की हत्या कर देता हूँ, और वह आत्महत्या करने के लिए वह जाता है रेलवे के स्टेशन पर, और वह किसी गाड़ी की राह देख रहा था कि चाहे कोई गाड़ी आए तो वह उस पर कूदकर मर जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि एक वो जो गाड़ी जो थी, जो वो गाड़ी थोड़ी देरी से आने वाली होती है, यानी कि वो गाड़ी का टाइम जो है थोड़ा बदल जाता है, और वो थोड़ी लेट आने वाली होती है। तो यह जो व्यक्ति था वह इधर उधर घूम रहा था कि कब गाड़ी आए और कब मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो उसको पानी की प्यास लगी, उसे बहुत प्यास लगी। तो वह क्या करता है कि वह पानी पीने के लिए जाता है किसी बर्फ पर, यानी कि पानी पीने के लिए वह जाता है, और जैसे ही पानी पीता है तो उसका ध्यान किसी पुस्तक के स्टोर पर जाता है, जहाँ कई तरह की पुस्तकें बिक रही थी। तो उसने सोचा कि यदि यह ट्रेन जो है 2-3 घंटे देर से आएगी, तब तक मैं क्या करूँगा, चलो एक पुस्तक ही लेकर पढ़ लेता हूँ। तो उसने क्या किया, तो वहाँ से एक स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक लेता है और वह पढ़ता है, और जैसे जैसे वह पुस्तक पढ़ता है उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, और उसने आत्महत्या करने का विचार जो है वो छोड़ दिया, और स्वामी विवेकानंद की तरह वह देश की सेवा में लग गया। तो यहाँ पर देखा आपने कि किस प्रकार जो है आत्महत्या के मन में जो निराशाजनक विचार थे उसको भी पुस्तक जो है वह दूर कर देती है। तो यहाँ पूजन जो है अपने मित्र मनोज को कहता है कि पुस्तक हमें ज्ञान देती है, ज्ञान का स्रोत है, और हमारे मन में जो कोई भी जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा की पूर्ति करती है, और वह ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें बड़ी मूल्यवान होती हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेगी। इनको पढ़कर हम ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। पुस्तक जो है हमारे जीवन को सजाती और संवारती है। और यहाँ पूजन जो है वह कहता है, एक अच्छी बात कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए। इसलिए वह कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर हम उसे क्या देते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं, बुके देते हैं, यानी कि फूलों का गुलदस्ता देते हैं। तो यहाँ पर पूजन कहता है कि हमें जन्मदिन के अवसर पर या किसी शुभ प्रसंग पर हमें किसी को फूलों का गुलदस्ता नहीं, लेकिन हमें क्या देना चाहिए, अच्छी पुस्तकें देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी पुस्तक ही हमारा जीवन संवार सकती है। इसलिए हमें जो है जन्मदिन के अवसर पर या किसी शुभ प्रसंग पर लोगों को फूलों का गुलदस्ता देने की बजाय हमें उससे एक पुस्तक, अच्छी पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। तो यहाँ पर पूजन जो है वह अंत में कहता है कि मैंने हर रोज, जब से हमारी पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान चल रहा था, तब से मैंने एक अच्छी पुस्तक का एक पन्ना
पढ़ने की प्रतिज्ञा ली है। जब से हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चला, तब से मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हर रोज एक अच्छी पुस्तक का एक पन्ना अवश्य पढ़ूंगा। तो आशा है कि तुम भी यह पुस्तक का महत्व समझकर तुम भी मेरी तरह अच्छी पुस्तक का एक पन्ना जरूर पढ़ोगे। यहाँ पूजन जो है मनोज को आग्रह करता है कि जिस प्रकार मैं हर दिन एक अच्छी पुस्तक का पन्ना पढ़ता हूँ, उसी प्रकार तुम भी एक अच्छी पुस्तक का पन्ना पढ़ने की प्रतिज्ञा लो। चलो आज से हम संकल्प करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसर पर हम शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हम बुके नहीं पर हमें बुक देनी चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो यहाँ अंत में जो है पूजन अपने मित्र मनोज को आग्रह करता है कि हमें यह संकल्प करना चाहिए कि यदि हम जन्मदिन के अवसर पर यहाँ किसी शुभ अवसर पर हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो हमें बुके नहीं लेकिन बुक देनी चाहिए। बुके नहीं लेकिन बुक देनी तो यहाँ बुके जो है उसका मतलब है फूलों का गुलदस्ता और बुक यानी पुस्तक। तो हमें भेंट में जो है जन्मदिन के अवसर पर हमें बुके नहीं लेकिन हमें बुक देनी चाहिए। अंत में जो पत्र है इसलिए वह अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आदर प्रकट करता है और कहता है परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र पूजन। तो यहाँ हमें लिखितन जो है कहाँ पर लिखना है कि जहाँ हमने एड्रेस लिखा है वहीं पर हमें लिखितन लिखना है तुम्हारा मित्र पूजन। तो यहाँ पत्र किसने लिखा था? पूजन ने लिखा था। तो यहाँ लिखितन में नाम भी पूजन का आएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पुस्तक हमारी मित्र जो है वो एक पत्र स्वरूप है और यहाँ पर पूजन ने अपने मित्र को जो है वह पुस्तक का महत्व बताते हुए पत्र लिखा है। पूजन जो है वह जो है मुंद्रा शहर में रहता है और वह अपने मित्र मनोज को जो है पुस्तक का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। तो अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है वह दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? तो उत्तर है नगर सोसाइटी मुंद्रा शहर में है। दूसरा है पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? तो उत्तर है पूजन की पाठशाला में
वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? तो वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। तीसरा है राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो राज्य सरकार ने जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र ऐसा सूत्र घोषित किया था। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र ऐसा राज्य सरकार ने सूत्र घोषित किया था। अगला है पत्र किसने किसको लिखा? पत्र किसने किसको लिखा? तो पत्र जो है पूजन ने मनोज को लिखा था। पूजन ने मनोज को पत्र लिखा था। पूजन जो है वह अपने मित्र मनोज को पत्र लिखता है। उसके बाद है पुस्तक के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तक के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो पुस्तक के बारे में गांधी जी ने कहा था किसी व्यक्ति के बोले हुए शब्द जो हैं हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखने चाहिए। तो यहाँ पुस्तक के बारे में गांधी जी ने कहा था ऐसा शब्द आए तो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार हम साबुन से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में कई सारे बुरे विचार होते हैं, कुविचार होते हैं, उनको पुस्तक जो है वह दूर करती है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो यहाँ पुस्तक जो है वह साबुन का कार्य करती है। उसके बाद जो प्रश्न है पूजन ने मनोज को कई दिनों के बाद पत्र क्यों लिखा?
पूजन ने मनोज को कई दिनों के बाद पत्र क्यों लिखा? क्योंकि पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। उसमें पूजन ने भाग लिया था, इसलिए कई दिनों के बाद पत्र लिखा। पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, उसमें तरह तरह के कार्यक्रम रखे गए थे। पूजन ने उसमें भाग लिया था, इसलिए कई दिनों के बाद पत्र लिखा। पत्र कब और कहां से लिखा गया था? तो पत्र जो है 4 अगस्त 2011 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया था। यह प्रश्न आप देखिए, यहाँ कहा गया है कि कब और कहां से लिखा गया। तो जब हमें कब कहा गया है तो यहाँ समय को सूचित करता है। तो कब यानी कि 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया था। कब कहा गया है, कब यानी समय का और तारीख की बात हो रही है। 4 अगस्त 2011 को उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से यह पत्र लिखा गया था। पत्र में किस बारे में लिखा गया था? तो पत्र में पुस्तक का महत्व के बारे में लिखा गया था। पुस्तक का क्या महत्व है उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। पुस्तक का क्या महत्व है उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो आप अपने आप जो पुस्तक का महत्व है उसके बारे में लिख सकते हैं, अपनी तरह से अपने विचार से पुस्तक का महत्व लिख सकते हैं। यहाँ पाठ के अनुरूप भी आप लिख सकते हैं। तो हम पाठ के अनुरूप देखते हैं कि पुस्तक हमारी सच्ची मित्र है। पुस्तक हमें भले बुरे का फर्क बताती है और हमारी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देती है। पूज्य गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तक जो है हमें जन्मदिन के अवसर पर किसी को भेंट में देने चाहिए। हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं, उसकी जगह पर हमें भेंट में जो है पुस्तक देनी चाहिए। पूजन ने अंत में क्या प्रतिज्ञा ली थी? पूजन ने अंत में यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह हर रोज अच्छी पुस्तक का एक पन्ना जरूर पढ़ेगा, यह उसने प्रतिज्ञा ली थी। और वह मनोज को क्या आग्रह करता है? तो वह मनोज को आग्रह करता है कि हमें जन्मदिन के अवसर पर या किसी शुभ अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पुस्तक जो है हमारी सच्ची मित्र है, क्योंकि वह हमें भले बुरे का फर्क बताती है और साथ ही साथ हमें हमारे मन के जो है मैल को दूर करती है। तो यहाँ पर पत्र स्वरूप है। तो पूजन ने पत्र के द्वारा जो है अपने मित्र मनोज को जो है वो पुस्तक का महत्व बताते हुए पत्र लिखा है। आशा है कि आपको यह पाठ जो है वो पत्र स्वरूप है वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।